Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 21st lecture of Basics of Industrial Engineering. So, in the previous series of the lecture, we try to discuss the various things about the work measurement technique, or we can say that the time study technique, how to record the time with using the different kind of the technique. And in the previous series of the lecture, we try to discuss the basic things about the stopwatch technique to record the time, and with using what kind of the technique, right? That there is a two kind of the stopwatch technique. The first, which is the flyback, and second, which is the continuous step of the stopwatch technique. They have a certain kind of the different kind of its advantage, or we can say that it's kind of the disadvantage with using that kind of the technique with the stopwatch technique. So whenever we are discussing some of the few points in the yesterday's lecture about the work measurement technique, or a time study technique, we also discuss after the time study, or we can say that the stopwatch technique, there is a different other technique which have certain kind of the uses for the recording of the work measurement, which is the work sampling, or we can say that the ratio delay study. So in today's lecture, let's start the discussions over the another techniques from the work measurement technique, which is the work sampling methods. Now, what is the meaning of the work sampling? So, a work sampling, we can also say that a ratio delay study is a technique of getting facts about a utilizations of the machine or a human beings through a large number of the instantaneous observations taken at the random time of the intervals. So basically, in a very simple language, whenever I try to explain some kind of the technical things, right, I'm always looking forward that whenever who is getting some kind of the difficulty to understand the high pronunciations or the high verbiologies of the technical things, I'm always prefer that I will give you simple kind of the justifications on whatever I want to say about that techniques. So basically, from the work sampling is a technique, right? It is one kind of the technique for getting the facts about the utilizations of the machines and the human being. तो बेसिकली ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप एक फैक्ट निकाल सकते हैं कि आप कितना जो है वो मशीन का यूज़ कर रहे हो, कितना अपने ह्यूमन बींग्स का यूज़ कर रहे हो, विथ अ लार्ज नंबर ऑफ द इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशंस। आप किस तरह से कर रहे हो कि आप जो है वो एक लंबा एक इंस्टेंटेनियस जो है वो ऑब्जर्वेशंस को लेके चलते हुए एट अ रैंडम इंटरवल टाइम, राइट? आप एक रैंडम इंटरवल टाइप के टाइम के ऊपर आप अलग अलग जो है वो सैम्पलिंग करोगे, राइट? सपोज आपकी जो कोई एक्टिविटी है वो सपोज 15 मिनट तक चलती है, तो आप क्या करोगे? 2 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, 11 मिनट के बाद, 13 मिनट के बाद, ऐसे रैंडम जो है वो इंटरवल के ऊपर जो है वो आप एक ऑब्जर्वेशंस लोगे। इज द थिंग्स विच इज गोइंग टू द बियॉन्ड द लिमिट और नॉट? तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कि वो मशीन ठीक से काम कर रहा है, वो बंदा ठीक से काम कर रहा है, तो इस तरीके की जो टेक्निक है चेक करने की, जिससे आप एक्चुअल फैक्ट जो है उसकी यूटिलाइजेशंस का, सपोज 8 घंटे में वो कितना इफेक्टिव उसका यूटिलाइजेशंस हो रहा है, तो ऐसे इंफॉर्मेशंस बाहर निकालने के लिए जो आप टेक्निक यूज़ करते हो, उस टेक्निक को वर्क सैम्पलिंग या फिर रेशियो डिलेट जो है वो स्टडी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशंस of a given activity to the total observations approximate the percentage of the time that the process is in it that state of activity. तो बेसिकली ये चीज़ है क्या
तो कि द रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिससे आप एक रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं ऑफ अ गिवन एक्टिविटी, जो आपका द्वारा एक्टिविटी की गई है, टू द टोटल ऑब्जर्वेशंस, राइट। टोटल ऑब्जर्वेशंस में से आप ऐसे एक रेशियो ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालते हो विच इज अप्रोक्सीमेट द परसेंटेज ऑफ द टाइम, जो एक परसेंटेज ऑफ टाइम के अप्रोक्सीमेशंस पे है, दैट द प्रोसेस इज इन द स्टेट ऑफ एक्टिविटी, जिससे एक आप कौन से स्टेट में जो है आप एक्टिविटी प्रॉपरली आपका चल रहा है, वो आपको यहाँ से एग्जैक्टली थ्रू आउट मैनर में आपको ये चीज़ जो है वो पता चल जाएगी. Now, the work measurement technique have certain kind of the procedures. Now, let's start the discussions over the procedure of the work measurement technique. So, there is a step one for defining of the problem. First, the describe the job for which the standard time is to be determined. राइट. फर्स्ट यू हैव टू डिस्क्राइब द जॉब, आपको जो है वो जॉब को डिफाइन करना है, फॉर विच अ स्टैंडर्ड टाइम इज टू बी डिटरमाइन, जिसके लिए आपने एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो निकाला हुआ है. नाउ अनएम्बिग्यूअसली स्टेट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ टू क्लासेस ऑफ द एक्टिविटीज of operators on the job. What are the activity of the job that would be entitle him to be in the working state? तो आपको अब क्या करना है, तो पहले आपने क्या किया था कि पहला जो मेरा स्टेज है विच इज दी डिफाइनेशंस ऑफ द प्रॉब्लम, जिसके अंदर आप अपने जॉब को डिस्क्राइब करोगे जो एक स्टैंडर्ड टाइम हिसाब से आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस है उसके हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना है. नाउ एम्बिग्यूअसली स्टेट एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू क्लासेस ऑफ एक्टिविटी, आपको दो क्लास ऑफ एक्टिविटीज़ को यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेट करना है, जिससे द ऑपरेटर्स ऑन द जॉब, जिससे आप एज एन ऑपरेटर को वो चीज़ बता सकें. व्हाट आर द एक्टिविटी ऑफ द जॉब दैट वुड बी एंटाइटल्स, कि जॉब के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो होने वाली है इन दी वर्किंग स्टेट, आप जब उसके ऊपर वर्क करोगे. दिस वुड बी इम्प्लाई दैट व्हेन ऑपरेटर विल फाउंड एंड एंगेज्ड इन एनी एक्टिविटी, जब ये हमें पता चलेगा कि ऑपरेटर जो है वो किसी एक्टिविटी के साथ जो है वो एंगेज है, एंड अदर देन दोज वुड एंटाइटल हिम इज टू बी इन द नॉन वर्किंग स्टेट. तो आप जो है वो कब जो है वो वर्किंग स्टेट के ऊपर है, कब जो है वो नॉन वर्किंग स्टेट के ऊपर हो जो है, वो आपको इससे जो है वो एक्टिविटी को जो है वो आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा. एक आपका डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड होगा जो है द वर्किंग स्टेट, एंड सेकंड विच इज़ द नॉन वर्किंग स्टेट. नाउ स्टेप्स 2 इज अबाउट द डिज़ाइन द सैम्पलिंग प्लान. आप सैम्पलिंग प्लान को कैसे डिज़ाइन करोगे. नाउ एस्टिमेट ए सेटिस्फैक्ट्री नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज़ टू बी मेड. तो आपको जो है वो एक एस्टिमेट निकालना है कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आप बनाने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एस्टिमेट सेटिस्फैक्ट्री द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ टू बी मेड. आप कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो बनाने वाले हो, वो आपको एक डिज़ाइन प्लान करना पड़ेगा. देन यू हैव टू डिसाइड ऑन द पीरियड ऑफ स्टडी. डिसाइड ऑन द पीरियड ऑफ स्टडी, आप कितने टाइम के लिए जो है इसको स्टडी करने वाले हो. सपोज यू आर डिसाइडिंग दैट पीरियड, एज एन एग्जाम्पल इट्स अ 2 day, इट्स अ 1 week, इट्स अ 1 month, इट्स अ 15 days, etc. You have to define the study period, right? For what period of time you are studying these activities. Then you have to prepare a detailed plan for taking the observations. अब आप किस किस टाइम के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करने वाले हो, उसके लिए एक आपको डिटेल प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा. दिस विल इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जिसके अंदर आपका पूरा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो है वो इंक्लूड होना चाहिए. एग्जैक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग, आप किस मेथड से जो है वो ऑब्जर्वेशंस करना चाहते हो. द डिज़ाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन शीट, जिसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो एक शीट होना चाहिए. द रूट विच इज़ टू बी फॉलो, किस रूट को फॉलो करते हुए आपको पूरा ऑब्जर्वेशंस जो है वो निकालना है. द रूट विच इज़ टू बी फॉलो, द पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ टू बी ऑब्जर्व एट द ऑब्जर्वेशंस टाइम, किस
पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस टाइम के दौरान आपने किस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है आपने किस पर्टिकुलर पर्सन को उस ऑब्जर्वेशन के दौरान आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सैम्पलिंग प्लान जब आप डिसाइड करोगे तो इतने इन्फॉर्मेशंस आपके पास होना चाहिए। कौन सा? एक तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप लेने वाले हो। दूसरा, आपको तय करना पड़ेगा यू हैव टू डिसाइड द पीरियड ऑफ स्टडी, आप कितने टाइम के लिए उसको स्टडी करने की कोशिश करने वाले हो। थर्ड, यू हैव टू मेक अ प्लान, अ डिटेल प्लान फॉर द ऑब्जर्वेशंस। आप ऑब्जर्वेशंस में क्या निकालोगे, विच इज इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, एग्जैक्ट मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जर्वेशन शीट, आपको शीट डिज़ाइन करेगी क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपको ऑब्जर्वेशंस में से निकालनी है, द रूट विच इज़ टू बी फॉलोड बाय द ऑब्जर्वेशंस, पर्टिकुलर पर्सन विच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड। आप ऑब्जर्वेशंस में कौन से पर्टिकुलर पर्सन को ऑब्जर्व करना चाहते हो। आपको लगता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है तो आपको किस पर्टिकुलर पर्सन को जो है उस ऑब्जर्वेशंस में कुछ टाइम तक आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन शीट के अंदर जो है वो एक सैम्पलिंग प्लान के दौरान आपको ये सब चीज़ जो है वो मैंशंस करनी है। Now, step 3, which is about contact the persons. Now, contact the person, that means the concerns and take them in the confidence which is regarding the conduct of the study. तो आपको जो है वो उस पर्सन को जो है वो कंसर्न में लेना है, उस पर्सन को आपको कांटेक्ट करना है जिसके रिगार्डिंग जो आप जो है वो स्टडी करने वाले हो। सो द कंसर्न्स एंड टेक दैम इनटू द कॉन्फिडेंस, आपको उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना है विच इज़ रिगार्डिंग द कंडक्शंस ऑफ द स्टडी, कि आप इस बेसिस के ऊपर स्टडी करने वाले हो तो मैं आपको पूरा आपका एक ऑब्जर्वेशंस किया जाएगा, उस तरीके से आपको उसको कंसर्न में लेके उसका ऑब्जर्वेशंस जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है करना है। नाउ स्टेप 4 विच इज़ रिगार्डिंग मेक द ऑब्जर्वेशंस एट अ प्री डिसाइडेड रैंडम टाइम्स। तो आपको जो है आपको रैंडम इंटरवल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस करना है, पर उसके लिए जो आपने टाइम तय किया गया हो वो पहले से प्री डिसाइडेड टाइम होना चाहिए, विच इज़ अबाउट द वर्किंग ऑन नॉन वर्किंग स्टेट ऑफ द ऑपरेटर्स। जो है वो ऑपरेटर का दोनों स्टेट के अंदर जो है वो ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, वर्किंग स्टेट के अंदर भी ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए और नॉन वर्किंग स्टेट के ऊपर भी उनका ऑब्जर्वेशंस जो है वो होना चाहिए। व्हेन द ऑपरेटर इज़ इन द वर्किंग स्टेट, जब आपका ऑपरेटर जो है वो वर्किंग स्टेट के अंदर होगा, यू हैव टू डिटरमाइन हिज परफॉर्मेंस रेटिंग। आपको उसका परफॉर्मेंस को जो है उस स्टैंडर्ड टाइम के साथ उसको आपको रेट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड बोथ ऑन दी ऑब्जर्वेशन शीट, राइट। उस दोनों चीज़ को जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन शीट के अंदर आप उस चीज़ को आपको रिकॉर्ड करनी है। नाउ द स्टेप 5 विच इज़ रिगार्डिंग यू हैव टू ऑब्टेन अ रिकॉर्ड ऑन दी अदर इंफॉर्मेशंस। आपको ये चीज़ के साथ अदर इन्फॉर्मेशंस भी आपको साथ में इसको रिकॉर्ड करना है और साथ में आपको रखना है। दिस इज इंक्लूड द ऑपरेशन स्टार्टिंग टाइम, जिसके अंदर ऑपरेटर्स जो है उसने कब वर्क को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट विच इज़ द क्विटिंग टाइम, कब उसने उस काम को छोड़ा। ऑफ द डे, राइट, स्टार्ट डे का स्टार्टिंग उसने किस टाइम पे किया था, डे का एंड उसने किस टाइम पे किया। द टोटल नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टेबल क्वालिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डे, कितने acceptable quality of the part which is to be made by that worker per day, you have to notice that informations and you have to keep that informations into the record state. Is it clear? Now step 6 which is regarding you have to calculate a standard time per the piece. आपको अब हर एक पार्ट के लिए, हर एक पीस के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए आपको उस हिसाब से जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपको निकालना पड़ेगा कि ये पार्ट बनाने के लिए अगर वर्कर अपना 100% देता है तो ये पार्ट बनाने के लिए, पूरा प्रोसेस करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 40 मिनट्स जो है वो लगते हैं। तो आपने उसका स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बना दिया। अब उस हिसाब से आपको पूरे एक्टिविटीज़ जो है वो दूसरे वर्कर के थ्रू भी जो है उस
एक्टिविटी को मॉनिटर करनी पड़ेगी। आपको हर एक वर्कर को जो है वो टाइम देना पड़ेगा कि ये इस प्रोडक्ट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम जो है इट्स अबाउट दी 40 मिनट। सो यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट विद द क्वालिटी प्रोडक्ट with the acceptable quality level into the 40 minutes because it's the standard times. Next which is the another technique, जैसे वर्क सैम्पलिंग हमने स्टडी किया उसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक निकल के आता है विच इज़ अ प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी विच इज़ द PMTS। ये नॉर्मली जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जो है एज एन शॉर्ट नोट जो है वो पूछा जाता है। व्हाट इज़ अ वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स। तो वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स के अंदर जो है एक टेक्निक आपको हमेशा जो है वो स्टडी कराया जाता है विच इज़ अ प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी विच इज़ द PMTS, ए प्रोसीजर दैट एनालाइजेज एनी मैनुअल एक्टिविटीज़। जो एक ऐसी प्रोसीजर है जो एनालिसिस करती है किसी भी मैनुअल एक्टिविटीज़ को इन द टर्म ऑफ द बेसिक और द फंडामेंटल मोशंस, जिसके अंदर उसका बेसिक या फिर एक फंडामेंटल मोशंस को जो है वो स्टडी किया जाता है विच इज़ रिक्वायर्ड्स टू परफॉर्म इट। तो ऐसी सारी मैनुअल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर बेसिक या फिर फंडामेंटल मोशंस जो है जो रिक्वायर्ड रहती है उसको आप मैन्युअली आप परफॉर्म करते हो, उसको आप ऑब्जर्व करते हो, तो उस सारी प्रोसीजर को जो है वो PMTS के अंदर गिना जाता है। तो दैट इज़ द प्रोसीजर द PMTS विच इज़ अ प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। इट्स अ प्रोसीजर दैट विच इज़ इट एनालाइजेज द मैनुअल एक्टिविटीज़। वो मैनुअल एक्टिविटीज़ जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं इन द टर्म ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल मोशंस विच इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट। Each of this motion is assigns a previously established standard time value। तो इसके अंदर सारे जो मोशंस हैं जो असाइन किए गए हैं वो प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड टाइम्स और वैल्यू के हिसाब से होते हैं। एंड देन द टाइमिंग फॉर द इंडिविजुअल मोशन आर सिंथेसाइज्ड। इसके लिए जो टाइमिंग लगता है फॉर द इंडिविजुअल मोशंस आर सिंथेसाइज्ड टू ऑब्टेन द टोटल टाइम विच इज़ नीडेड टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़। राइट, इसके हिसाब से इसको सिंथेसाइज करके जो हर एक मोशन को सिंथेसाइज करके आपको इस पूरे एक्टिविटी को करने के लिए कितना टोटल टाइम जो है वो लग सकता है आप उसको जो है उन हिसाब से निकालोगे। सो ईच ऑफ दिस motion is assigned a previously established standard time value. Then the timing for the individual motions are synthesized to obtain the total time which is needed to performing the activities. So a predetermined motion time study PMTS, the main use of the PMTS is lies in the एस्टिमेशंस ऑफ द टाइम। इसको जो है वो टाइम को एस्टिमेट करने के लिए ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है फॉर परफॉर्मिंग ऑफ अ टास्क बिफोर इट इज़ परफॉर्म। तो ये टाइम जो है वो परफॉर्म स्टैंडर्ड एस्टिमेट टाइम जो है वो निकालने के लिए यूज़ होता है। कब तक कि जब आप किसी भी एक्टिविटी के ऊपर किसी भी टास्क को परफॉर्म करो उससे पहले उसका एक एस्टिमेटेड टाइम निकालने के लिए PMTS टेक्निक जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है। तो बेसिकली यूज़ क्या है कि आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करो उससे पहले उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना एस्टिमेटेड टाइम जो है वो लग सकता है, उस टाइम को निकालने के टेक्निक को जो है वो PMTS जो है वो बोला जाता है। द प्रोसीजर इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो प्रोसीजर है पूरा पर्टिकुलरली वो किस लिए कैसे यूज़ हो सकता है। द प्रोसीजर इज पर्टिकुलरली यूज टू दोज ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है विच डू नॉट वॉन्ट्स टू ट्रबलसम परफॉर्मेंस रेटिंग, जो किसी और परफॉर्मेंस रेटिंग को ट्रबल शम्स नहीं करते हैं, दैट डू नॉट यूज्ड इच विथ इच स्टडीज़ टू बी यूज्ड विथ इच स्टडीज़। तो दिस प्रोसीजर इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल टू दोज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये पर्टिकुलर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो पर्टिकुलरली विच इज़ डू नॉट वॉन्ट्स टू ट्रबल सम
परफॉर्मेंस रेटिंग, जो अपने परफॉर्मेंस रेटिंग को कुछ अपने निकाले हुए परफॉर्मेंस रेटिंग के ऊपर कोई ट्रबल्स जो है, कोई दिक्कत नहीं पाना चाहते, ऐसी प्रोसीजर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द पीएमटीएस? सो इट्स यूज टू डिटरमाइन द जॉब फॉर द स्टैंडर्ड, जॉब टाइम स्टैंडर्ड. तो ये जॉब का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो निकालने के लिए यूज़ होता है. इट्स यूज फॉर कैरिंग द टाइम for alternative proposed method so as to find the economic of the proposal which is prior to the production's run. तो ये ऐसे अल्टरनेटिव जो परफॉर्मेंस मेथड है उसका भी टाइम निकालने के लिए भी उसको यूज़ किया जा सकता है, ताकि आप फाइनल प्रोडक्शंस रन जो है वो स्टार्ट करो उससे पहले दो में से कौन सा मेथड जो है वो बेटर ऑप्शन है जिससे इसका पता चल सकता है. देन द एस्टिमेशंस ऑफ द मैन पावर, जिससे आप उसके मैन पावर के यूजेस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं. इक्विपमेंट एंड स्पेस विच इज़ रिक्वायर्स टू प्रायर टू सेटिंग अप द फैसिलिटीज़ एंड द स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शंस, जिससे ये सब चीज़ स्टार्ट हो उससे पहले इसका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इससे लगता है. देन डेवलपिंग अ टेंटेटिव वर्क लेआउट फॉर असेंबली लाइन, इससे आप एक असेंबली का टेंटेटिव वर्क लेआउट भी आप प्लान कर सकते हैं विच इज़ प्रायर टू दैर वर्किंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द सब्सिक्वेंट रीअरेंजमेंट्स एंड रीबैलेंसिंग, जिससे आप एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रीअरेंजमेंट और इसको बैलेंसिंग बोल सकते हैं. सो डेवलपिंग अ टेंटेटिव वर्क लेआउट फॉर द असेंबली लाइन्स, जिससे एक पूरा असेंबली लाइन के लिए आप एक पूरा लेआउट स्ट्रक्चर जो है वो प्लान जो है आप निकाल सकते हैं, विच इज़ प्रायर टू दैट वर्किंग इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ द सब्सिक्वेंट्स रीअरेंजमेंट्स एंड द रीबैलेंसिंग्स. So next, which is the time study, which is include the part of the motion study in which there is a time and motion study, जिसके अंदर time and motion दोनों का study जो है वो किया जाता है. Then next, which is the advanced technique, which is a predetermined motion time system, which is the PMTS, जो हमने अभी अभी discuss किया. Then the another technique which is the method time measurement, which is the MTS, जिसके अंदर आप किसी method का specific जो है वो time measurement करोगे. Then the method time measurement 2, which is the MTM2. Then the method time measurement 3, which is the MTM3. And then next, which is the Marand operation sequence technique, which is the MOST, Marand ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक. मेरेंट ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको एडवांस इन्फॉर्मेशंस जो है वो निकाल के पाई जाती है. नाउ मेरेंट मोशंस ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक के अंदर द मोस्ट सीक्वेंस विच इज़ इंक्लूड द 3 part in working of it, which is a most work measurement system, which is a motion operation sequence technique, which is include the measurement system, work measurement system, then most application system and most computer system. So these are including the 3 system. First, which is the work measurement system, application system, and third one, which is the computer system. The basic most, which is it is used for the general applications. Then mini most, which is a repetitive operations. Then third one, which is a maxi most, which is a non-repetitive operations. And fourth one, which is a clerical most for the clerical operations. So work measurement system के अंदर there are the 4 another parts for working of that most system, which is the basic most, which is the general operations, the mini most for the repetitive operations, then maxi most, which is the non-repetitive operations, and the clerical most for the clerical operations. So these are the examples of the most systems and how the most system is working based on the prioritizations. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर्स. आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिक चीज़ जो है वो हमने स्टडी करने की कोशिश की है, जिससे आप एक बेटर इन्फॉर्मेशंस जो है वो निकाल सकते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हमने वर्क सैम्पलिंग टेक्निक को जो है वो स्टडी करने की कोशिश की है, किस तरीके से आप वर्क
सैम्पलिंग के अंदर पूरा इस क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आप वर्क सैम्पलिंग कर पाते हो, कैसे एक रैंडम इंटरवल के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशंस के लिए आप इन किन चीज़ों का ऑब्जर्वेशंस करोगे. देन वी ऑल्सो डिस्कस दी अनदर टेक्निक फ्रॉम दी वर्क मेजरमेंट विच इज़ द PMTS विच इज़ द प्री डिटरमाइंड मोशन टेक्निक, जिसके अंदर जो है वो किस तरीके से प्री डिटरमाइंड मोशन टेक्निक किस वजह से यूज़ होता है, अंदर उसका क्या पूरा प्रोसीजर है, किस तरीके से PMTS जो है वो वर्क करता है. देन द MTM जो है द मेथड राइट, जो मेथड स्टडी है, मेथड टाइम मेजरमेंट सिस्टम है, वो भी एक तरीके का PMTS का एक छोटा सा जो है वो पार्ट है. वो कैसे वर्क करता है वो आपको अब थोड़ा बुक से आप रेफरेंस ही पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये दो टेक्निक को स्टडी करने की कोशिश की है. आई होप यू understand the both the technique very clearly. Even if you have a certain kind of the questions in this two technique, you can ask your questions doubt into the comment sections. I will definitely solve your doubts into the next series of the lectures. After watching this video, you have to write your enrollment number into the comment sections, which is counted as your online attendance. So please take it very seriously. You have to compulsorily write your enrollment number into the comment sections. यहाँ पे जो है वो आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है प्रोडक्टिविटी एंड दी वर्क स्टडी जो है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो हम लोग नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर नंबर 4 होगा आपके सिलेबस से. सो प्लीज़ पूरा चैप्टर का जो है वो आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा. चैप्टर थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा है. कंपैरेटिवली अगर बात करें तो मार्क्स के वेटेज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है. ये 14 to 21 मार्क जो है इससे इसका वेटेज जो है वो निकल के आता है. तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको पूरा प्रॉपरली इसको स्टडी करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.